کبھی کبھار ایسی بے چینی اور گھبراہٹ ہوتی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس بے چینی اور گھبراہٹ کی آخری وجہ کیا ہے۔ شاید پہلی بار میں اس عورت کے پاس جا رہا تھا یہی وجہ تھی، حالانکہ یہ سب کچھ میں کسی عورت کے ساتھ پہلی بار نہیں کر رہا تھا، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں گھبراہٹ اور بے چینی میرے سارے جسم پر سرایت کر رہی تھی۔ میرے دوست نے بھی مجھ سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم کیوں پریشان لگ رہے ہو؟ تو میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے اپنی کیفیت کے بارے میں خود پتا نہیں تھا تو میں اپنے دوست کو کیا بتاتا۔ ہم دونوں خاموشی سے چلتے جا رہے تھے۔ تھوڑی دور چل کر ایک گھر نظر آیا۔ میرے دوست نے مجھے اشارہ کیا کہ یہی وہ بیوہ عورت کا گھر ہے۔ وہ گھر بہت خستہ حالت میں تھا۔ کسی زمانے میں شاید یہ گھر بہت اچھا ہوا کرتا تھا، لیکن اب اس کی حالت اس قدر خراب تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کئی سالوں سے اس کے رنگ و روغن نہیں کیے گئے اور پھول پودے جھاڑیوں کی صورت اختیار کر گئے تھے۔ میرے دوست نے دروازہ بچایا تو ایک بچے نے دروازہ کھولا اور وہ ہمیں اندر لے گیا۔ ہمیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا گیا تھا۔ میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ میرا دل مجھے ملامت کر رہا تھا کہ میں یہ کام نہ کروں، کیونکہ یہ کام گناہ کبیرہ کے زمرے میں آتا ہے، لیکن میں اس قدر مجبور تھا کہ یہ کام کرنے کے علاوہ مجھے کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے ہر حال میں یہ کام سر انجام دینا تھا۔ میں نے 4 شادیاں کی تھی، لیکن مجھے چاروں سے اولاد کی نعمت نہیں مل پائی تھی۔ میری 4 بیویاں تھیں۔ اکثر سننے میں آتا ہے کہ جب مرد 2-3 شادیاں کرے اور اس کو اس سے اولاد نہ ہو تو خرابی ہمیشہ مرد میں ہوتی ہے، لیکن یہاں معاملہ بالکل الٹا تھا۔ مجھ میں کسی بھی قسم کی کوئی خرابی نہیں تھی۔ میری صحت بھی اچھی تھی اور میری ساری رپورٹس بھی کلیئر تھی۔ نہ جانے کیا چکر تھا کہ مجھے 4 بیویوں سے بھی اولاد کی خوشی مل نہیں پا رہی تھی، حالانکہ ان میں سے میری جو آخری بیوی تھی وہ ایک طلاق یافتہ تھی۔ اس کے پہلے بھی بچے تھے جو اس کے شوہر نے اس سے واپس لے لیے تھے، اور میں نے بھی یہ سوچ کر اس سے شادی کی تھی کہ اس نے پہلے بھی تو بچے پیدا کیے ہیں، مجھ سے جب اس کی شادی ہوگی تو مجھے بھی اس عورت سے اولاد ہو جائے گی۔ لیکن افسوس میرے مقدر میں یہاں بھی اولاد کا سکھ نہیں دیکھا تھا اور مجھے اس سے بھی اولاد نہیں ہوئی۔ میرا اب گھر سے نکلنا بھی محال ہو گیا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگا تھا، کیونکہ لوگ تو اب میرے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے تھے۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ شاید عسکر میں ہی خرابی ہے، اسی وجہ سے 4 بیویوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہے۔ میں ان لوگوں کو کئی بار سمجھا چکا تھا، لیکن کوئی میری بات پر یقین نہیں کرتا تھا۔ میں اپنی رپورٹ لے کر ایک ایک کے پاس تو نہیں جا سکتا تھا۔ دنیا والوں کا تو کام ہے بکواس کرنا، لوگ کبھی بھی کسی کو بھی نہیں جینے دیتے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی باتوں کو میں دل سے نہیں لگاتا تھا، لیکن ڈپریشن میں مبتلا ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں مجھے بھی اب ایسے ہی لگنے لگا تھا کہ شاید مجھ میں ہی کوئی خرابی ہے، لیکن جب رپورٹ کو دیکھتا تو تسلی ہو جاتی تھی، اس لیے میں نے ان کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ جب میں نے اپنی پریشانی اپنے دوست سے شیئر کی تو اس نے مجھ سے کہا کہ آج کل پیسے لے کر بھی کئی عورتیں بچہ پیدا کر دیتی ہیں، بچہ تمہارا ہوگا اور تم اس عورت کو پیسے دو گے، جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو وہ بچہ تمہیں دے دے گی۔ یہ سن کر میں تھوڑا پریشان ہوا۔ مجھے ایسا کرنا عجیب تو لگ رہا تھا، مگر کوئی اور راستہ بھی تو نہیں تھا۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ کئی پلسرات کو عبور کرنا، مجھے بھی یہ کام کسی پلسرات کی طرح لگ رہا تھا۔ میرے دل میں بار بار ندامت کے بادل چھا رہے تھے، مگر ہر بار میں انہیں جھٹک رہا تھا اور اپنے آپ کو مطمئن بھی کر رہا تھا کہ میں مجبوری میں یہ کام کر رہا ہوں۔ اب میں 5ویں شادی تو نہیں کر سکتا تھا، میری مالی حالات بھی اتنے اچھے نہیں تھے، اوپر سے 4 بیویاں، اب مجھ سے کون شادی کرتی؟ ایک روز میری بڑی بیوی نے کہا، مجھے لگتا ہے ایسا کہ جیسے آپ کو کسی نے بددعا دی ہے۔ میں حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، کیسی بددعا؟ کس قسم کی؟ اس نے کہا، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کو کسی نے ایسی بددعا دی ہے کہ آپ یہاں کبھی بھی اولاد نہ ہو۔ تو میں حیران ہو گیا۔ اس کی بات پر میں غور کرنے لگا تو میری دوسری بیوی کہنے لگی، ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی ایسا گناہ کیا ہو جس کی وجہ سے آپ کو اب تک اولاد نہیں ہو پا رہی، اور ہمارا آنگن ابھی تک اولاد کی کلکاریوں سے سنا ہے۔ اپنی دونوں بیویوں کی باتیں مجھے چونکنے پر مجبور کر گئی تھی اور میں سوچنے لگا تھا، آخر مجھ سے ایسا کون سا گناہ، ایسی کون سی خطا ہوئی ہے جس کی وجہ سے میں اب تک اولاد کی خوشی سے محروم ہوں؟ لیکن میں اتنا مصروف رہتا تھا کہ مجھے سوچنے کا بھی کوئی وقت نہیں تھا کہ میں پرانی باتیں سوچنے بیٹھوں، اور ویسے بھی میری یادداشت اتنی تیز نہیں تھی، پرانی باتیں میں اکثر بھول جایا کرتا تھا۔ جب بہت سوچنے پر بھی میری سمجھ میں کوئی بات نہیں آئی تو میں نے اپنے دوست کے مشورے پر عمل کرنے کا سوچا اور یہی فیصلہ کیا کہ کسی عورت کو پیسے دے کر بچہ پیدا کروا لیتا ہوں۔ میں چاہتا تھا کہ میں بھی اولاد کا سکھ دیکھوں، مگر ان سب میں یہ بات بھول رہا تھا کہ وہ اولاد حرام اور ناجائز ہوگی جو بنا کسی رشتے کے اس دنیا میں آئے گی، اور اسلام میں بھی صرف 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ میں 5ویں بار نکاح نہیں کر سکتا تھا۔
अब इस ड्राइंग रूम में बैठे हुए हमें 10 मिनट हो गए थे, लेकिन वो औरत अभी तक आने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने कभी किसी औरत से इस किस्म की डील या इस किस्म की बात नहीं की थी। मैंने अपने दोस्त से कहा था कि तुम ही इससे बात करना, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। शायद मेरे अंदर तो खौफ खुदा भी था, मेरा ज़मीर तो मुझे मलामत भी कर रहा था। मैं जबरदस्ती अपने ज़मीर को अपने हाथों से सुला रहा था। तभी वो औरत अंदर आई। उसने अपना चेहरा दुपट्टे से ढांप रखा था, उसकी सिर्फ आंखें नजर आ रही थी। न जाने क्यों मुझे वो आंखें देख के भाली सी महसूस हो रही थी, या फिर शायद ये मेरा वहम था, मगर उस औरत की आंखें देखकर जो हैरान कुन तासुरात उभरे थे वो मेरी आंखों से दूर नहीं रह सके थे। मेरा दोस्त हम दोनों का तारुफ करवा रहा था। मैंने उस औरत को सलाम किया, लेकिन वो ऐसी बेमुरव्वत औरत थी, वो टस से मस नहीं हुई। उसने मुझे मेरे सलाम का जवाब तक नहीं दिया, हैरानगी से बस मेरे चेहरे की तरफ देखती जा रही थी। मेरा दोस्त भी उसके इस रवैये पर हैरान हो गया और मेरी तरफ देखने लगा। हम दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि ये औरत इस तरह क्यों बुत बनकर खड़ी हुई है। जब मेरे दोस्त ने उससे कहा कि क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है, तब उस औरत ने अपने चेहरे से निकाब हटाया तो उसे देखकर मैं चौंक गया, क्योंकि औरत वो कोई और नहीं, उस औरत को मैं देखकर हैरान और परेशान हो गया था। मेरे वहम गुमान में नहीं था कि ये औरत आज इस हाल में होगी और इस किस्म के काम कर रही होगी। उस औरत को देखकर मैं दूर कहीं मासी में गुम हो गया था। हमारा आबाई मकान मियाँ चन्नू में होता था, जहाँ पर हम सब मिलकर रहते थे। मेरे दादा दादी, मेरे चाचा, मेरी फूफियाँ, हम सब एक ही घर में रहते थे और वो घर बहुत बड़ा और हवेली नुमा था। मेरे बाबा और मेरी अम्मी दोनों आपस में रिश्तेदार थे, इसलिए हमारे नाना का घर भी इसी मोहल्ले में था। जिंदगी बहुत पुरसकून और खुशबाश गुजर रही थी। हमारा खानदान बहुत सुलझा और मस्बी था, मगर सबका लाड प्यार और इतना पैसा पाकर मैं कुछ जिद्दी और खुदसर किस्म का इंसान बन गया था। मेरी वजह से मेरे वालिदैन बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि हमारा ताल्लुक एक मजहबी घराने से था। मैं सबसे बिल्कुल मुख्तलिफ था। मेरा चाल चलन दोस्तों के देखा देखी बिल्कुल आवारा लड़कों जैसा हो गया था। मैं सारा दिन पूरी सोहबत में रहता और बिगड़े हुए काम करता रहता था। नए नए एडवेंचर्स करने का मुझे बहुत शौक था। इस वजह से सब मेरे माँ बाप पर जुमले कसते थे और कहते थे कि उन्होंने अपने बेटे की तरबियत अच्छी नहीं की। मैं खानदान की लड़की भी छेड़ता था और वो लड़कियां भी मेरी वजह से परेशान रहती थी। कई एक मुझे धमकियां भी देती थी, लेकिन मैं अपनी हरकतों से बाज नहीं आता था और ये सब चीजें मेरे वालिदैन की शर्मिंदगी में इजाफा कर रही थी। अक्सर अपने वालिदैन से शिकायत करती थी, वो तो मेरे माँ बाप को शिकायत करते। इस वजह से मेरे माँ बाप सख्त परेशान थे, लेकिन मैं अपनी रोश पर कायम था। मेरा नजरिया ये था कि मेरी जिंदगी मुझे अपने तरीके से अपनी मर्जी से गुजारनी है। मैं किसी की भी बात ना सुनता था, ना किसी की बातों में आता था। मेरा मानना था कि जिंदगी एक बार मिलती है तो इसे खुलकर इंजॉय किया जाए, बाद में तो घर के मसले मसाइल खत्म नहीं होते हैं और जिंदगी इंजॉय करने का मौका भी नहीं मिल पाता। अब सारे खानदान में मेरी शोहरत बहुत खराब हो चुकी थी। पहले जो कजिन्स लड़कियां हमारे घर आती थी, अब उन लड़कियों का मेरे घर आना ममनून हो चुका था। खानदान में अगर कोई शादी या फंक्शंस वगैरह होता तो लड़कियों की माएं उन्हें मेरे करीब जाने से रोकती थी और मर्द हजरात पर गहरी नजर रखे हुए थे, मगर मैं फिर भी अपना काम कर चाहता था। मैं किसी से भी नहीं डरता था, ना अपनी हरकत से बात आता था। मेरे बाबा ने मेरी वजह से ऐसी तकरीब में जाना छोड़ दिया था और अक्सर हमारे रिश्तेदार मेरे माँ बाप को दावतनामा ही नहीं भेजते थे, क्योंकि उनको पता था अगर हम उनको दावतनामा देंगे तो ये जबरदस्ती चला आएगा। और सब मुझसे किनारा करते थे, कोई मुझसे बात करना पसंद नहीं करता था। वहां पर एक लड़की थी जिसका नाम आयशा था, वो मेरी मामी की बेटी थी। मैंने नोट किया था कि वो मुझ में बहुत दिलचस्पी लेती थी और वो खुद भी कुछ मॉडर्न किस्म की लड़की थी। बाकी खानदान के लड़के लड़कियों की तरह नहीं थी जो माँ बाप के इशारों पर चलते थे। माँ बाप कहें कि उठ जाओ तो उठ जाना, माँ बाप कहें बैठ जाओ तो बैठ जाना। मुझे ऐसी लड़कियों से सख्त चिढ़ थी, उनसे नफरत महसूस होती थी। उनकी भी तो कोई अपनी जिंदगी थी, वो भी जीते जागते इंसान थे और दूसरों के इशारों पर क्यों चलते थे। जब यही बात मैं अपनी माँ से कहता था, वो यही कहती थी कि वो अपने वालिदैन के फर्माबरदार औलादे हैं, अपने वालिदैन का कहना मानते हैं और उनकी ताबेदारी करते हैं। और मैं कहका लगाकर हंस पड़ता था और मैं कहता था कि फर्माबरदार औलाद नहीं, वो गुलाम है, बांदियां हैं और ये माँ बाप की खुद गर्जी है जो उनको अपनी उंगलियों पर निचवाती हैं। मेरी ऐसी बातें सुनकर मेरी माँ सर पकड़कर बैठ जाती थी। आयशा को मैंने अपना फोन नंबर दे दिया था, जो सारी रात मुझसे बैठ के बातें करती थी और मैं भी खुश था कि मुझे भी टाइम पास के लिए कोई मिल गया था। मैं तो उसके साथ महज वक्त गुजारी कर रहा था, लेकिन वो शायद मेरे बारे में संजीदा थी। मैं उससे पूछता था कि जहाँ सारे लोग मुझसे नफरत करते हैं, कोई मुझे पसंद नहीं करता, तो तुम मुझे कैसे पसंद करती हो? तो वो कहती थी कि जब इंसान का दिल किसी पर आए तो वो सही गलत नहीं देखता, दिल पर किसी का इख्तियार नहीं है और इसी
सी चीज को तो मोहब्बत कहते हैं, जो इंसान को बेख्तियार कर देती है। और मैं भी शायद तुम्हारी मोहब्बत में बेख्तियार हो गई हूँ। तुम मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हो। वो बंद सवर कर मुझे अपनी तस्वीरें भेजती थी, लेकिन मुझे उसके हुस्न में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे जिस चीज में दिलचस्पी थी वो मुझे दे नहीं सकती थी। अब मैं उससे बातें करके बोर हो चुका था, उकता गया था, इसलिए मैंने उसके फोन कॉल करना बंद कर दी थी। और वो इस कदर पागल थी कि बार बार मुझे उसके मैसेजेस आते, कॉल्स आती थी। वो मेरे इश्क में पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। जब मैंने अपने दोस्त से कहा कि मैं इससे जान छुड़वाना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरे पीछे पागल हो गई है, तब मेरे दोस्त ने कहा यही तो मौका है, तुम इस मौके से फायदा उठा सकते हो। जब तुम्हारे इश्क में इस कदर पागल है तो तुम इससे कुछ भी कहोगे तो वो तुम्हारे लिए कर गुजरेगी। तब मुझे मेरे दोस्त की बातें सही लगी और अब मैंने उससे मिलने के लिए इसरार शुरू किया था कि वो मुझे बाहर मिले। वो अपने घर वालों से बहुत डरती थी और वो कहती थी कि अगर घर वालों को इसके बारे में पता चला तो वो मुझे मार डालेंगे। वो बहुत मॉडर्न किस्म की लड़की थी, उसका इस तरह से डरना मुझे हजम नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लगता था कि वो जल्द ही मुझे बाहर मिल जाएगी, मगर वो इतनी ही टेढ़ी हड्डी साबित हो रही थी और मैं हैरान रह जाता था कि वो तो इस कदर बोल्ड लड़की थी जो किसी से भी नहीं डरती थी। वो इस बात के लिए डर रही थी कि मुझसे मिलने की वजह से उसकी बेइज्जती हो जाएगी। शायद उसके माँ बाप बहुत ज्यादा सख्त थे, पर हाल जो भी था मुझे तो अपने काम से मतलब था और फिर काम निकलवाने के बाद मैं उसे हमेशा के लिए छोड़ देता। और वो तो लाइन पर ही नहीं आ रही थी। हैरत तो मुझे इस बात पर थी कि वो तो मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार थी। मुझे कहती कि मैं तुम्हारे लिए दुनिया छोड़ सकती हूँ। अब ना जाने क्यों वो इतना छोटा सा काम करने के लिए हिचकिचा रही थी। और फिर जब मैंने ज्यादा इसरार करना शुरू किया तो वो कहने लगी कि तुम मुझसे शादी कर लो, मेरे लिए रिश्ता भिजवा दो। और उसकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। इतनी जल्दी शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। अभी तो मेरी जिंदगी एंजॉय करने की उम्र थी। शादी के हवाले से मैंने अलग ही सोच रखा था। बेशक वो बहुत खूबसूरत थी, मगर वो मेरे आइडियल जैसी नहीं थी। मजबूरन मुझे उससे ब्लॉक करना पड़ा था, मगर वो एक के बाद एक नंबर से मुझे कॉल्स करती थी, मैसेजेस करती थी और मैं उसके नंबर ब्लॉक करता गया। वो रो रो कर मैसेजेस करती और मैं उससे बेजार हुआ चाहता था। मजबूरन मैंने अपनी सिम ही बदल ली और उसके बाद मैंने किसी लड़के से फोन पर बात करने की कोशिश ही नहीं की। ये तजर्बा मुझे बहुत कुछ सिखा गया था। मैं जान गया था इन लड़कियों का बातों से दिल नहीं भरता, मगर जो चाहिए था वो मुझे दे नहीं सकती थी। और जो लड़की ये सब मुझे दे सकती थी उसके साथ मैं लंबी लंबी बातें नहीं करता था, सीधा मतलब की बात पर आ जाता था। वक्त बीता गया, उसके बारे में मुझे कोई खबर नहीं थी कि वो कहाँ गई और ना ही मैंने उसके बारे में कुछ जानने में दिलचस्पी रखी थी। वक्त गुजरता गया, ये के बाद देकर मेरे माँ बाप का भी इंतकाल हो गया था। माँ बाप की मौत का मुझे बहुत दुख हुआ था। उसके बाद मुझे अंदाजा हुआ कि मैं कितना अकेला पड़ गया था। वो दोनों मेरे लिए कितने खास थे। अब मेरा यहाँ पर कुछ नहीं रह गया था। मैं अपना सब कुछ बेचकर दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया था। मेरे अपने खानदान वालों से ताल्लुक ना होने के बराबर रह गया था। मुझे कुछ खबर नहीं थी कि मेरे बाप खानदान में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और अब इतने सालों के बाद जब मैंने आयशा को एक बेसहारा गरीब और बेवा औरत के रूप में अपने सामने देखा तो मैं उसे यकटक देखता रह गया। अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। मैंने फिर उससे पूछा कि तुम इस हाल तक कैसे पहुंची हो, क्या हुआ है तुम्हें। मेरी बात सुनकर वो फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी बहुत लंबी दास्तान है, एक लंबा सफर तय किया है। मैंने कहा कि जो दुख भरा और असियत भरा था। जब तुमने मुझसे बात करना बंद कर दी तो मैं जैसे पागल सी हो गई थी, बिल्कुल नफ्सियाती मरीजा बन के रह गई थी। कुछ समझ नहीं आता था कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, तुम्हें कैसे मनाऊं, अपनी मोहब्बत का यकीन कैसे दिलाऊं, तुमसे तुम्हारे साथ की भी कैसे मांगू। मेरी हालत मेरे घर वालों पर भी आश्कार होने लगी थी। वो मुझसे पूछते थे कि आखिर क्या नाम है उसका जिसने तुम्हें पागल कर दिया है, तुम्हारा किस हद तक ताल्लुक रहा है उसके साथ, बताओ क्या गुल खिलाया है तुमने। लोगों की बातों ने मुझे पागल कर दिया था, अपनों की बातों ने मुझे जीते जी मार दिया था। मगर मुझे तुम्हारी इज्जत मतलूब थी, तभी मैंने तुम्हारा नाम कभी किसी के सामने नहीं लिया और मेरी दीवानगी और जुनूनी पन से घबरा कर मेरे माँ बाप ने मेरी शादी कर दी थी। वो डर गए थे कि कहीं मैं खुद खुशी ना कर लूं या फिर घर से कहीं भाग ना जाऊं। अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने मेरी शादी कर दी थी। मेरे शोहर की नौकरी इस शहर में थी, तभी मैं इसके साथ यहाँ पर आ गई थी। इतने टाइम तक मैं तुम्हें भुला नहीं सकी थी, शायद तुम्हें भुलाना नहीं चाहती थी। और फिर रफ्ता रफ्ता मैं जिंदगी के झमेलों में मसरूफ हो गई थी तो मैं वक्ती तौर पर भूल गई थी। तुम्हारी याद से फरार हासिल हो गया था। कुछ साल पहले मेरे शोहर का इंतकाल हो गया। मैं मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रही हूँ, क्योंकि मायके और ससुराल में मेरा ऐसा कोई भी खैर खा नहीं है जो
मेरी मदद कर सके। इस महंगाई के जमाने में वो अपने खानदान के साथ साथ मेरे बच्चे को भी पाले, जो मुझसे मेरी जरूरतों के बारे में पूछ सके। मैं अपने बच्चों के लिए जिंदगी के दिन काट रही हूँ, वरना जिंदगी से तो सारी दिलचस्पियां खत्म होके रह गई हैं। सोचती हूँ कि मुझे कुछ हो गया तो उनका क्या बनेगा, कहाँ जाएंगे ये। मजबूर होकर मैं इस बात पर राजी हो गई कि पैसे लेकर मैं आपके बच्चे की माँ बनूं, मगर मुझे मालूम नहीं था कि आप इसकी बात पर मैंने खुद को शर्मिंदगी की गहराइयों में उतरता हुआ महसूस किया था। तभी मैं उससे कहने लगा कि तुमने मुझे बदुआ तो दी होगी क्योंकि मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा था, तुम्हारे साथ इतना बुरा किया था। मेरी बात पर वो हंसकर कहने लगे कि तुम दिल में अभी तक जिंदा हो और मुझे अब इस बात का भी एहसास हो गया है कि तुमने मेरे साथ बेवफाई की थी, तुमने मेरे साथ गलत किया था। जब भी मुझे तुम्हारी याद आती है तो मैं एक ठंडी आह भरकर रह जाती थी। खुदा गवाह है कि मैंने तुम्हें कभी बददुआ नहीं दी, बल्कि जब भी तुम याद आए मैंने हमेशा तुम्हें खुश रहने की दुआ दी। तुम बताओ तो क्या तुम खुश हो अपनी जिंदगी से? इसकी बात सुनकर मैं रो पड़ा और वो मुझे हैरान निगाहों से देखने लगी थी। अब मुझे अंदाजा हुआ था कि मेरी दोनों बीवियों ने मुझसे जो बात कही थी वो बिल्कुल सच थी। उन दोनों का कहना था कि मुझ पर किसी की बदुआ का असर है। शायद मैंने किसी के साथ बहुत बुरा किया था, उसकी सजा के तौर पर मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं 4 शादियां करने के बावजूद औलाद की नेमत से अभी तक महरूम हूँ। और अब मुझे अंदाजा हो गया था कि वो बदुआ किसी और की नहीं बल्कि आयशा की थी, क्योंकि मैंने एक मासूम का दिल तोड़ा था। उसकी आंखों में ख्वाब से जाकर वो ख्वाब उसकी आंखों से नोच लिए थे और उसे अकेला छोड़ दिया था। ये बहुत बड़ा गुनाह था, क्योंकि अल्लाह पाक मासूम दिल तोड़ने वालों को पसंद नहीं करता, और जब भी कोई गुनाह करता है तो उसे उसकी सजा मिलकर रहती है। और फिर मैं अपने दोस्त के साथ खामोशी से वहां से चलकर आ गया था। वापसी पर मेरा दिल बहुत बोझ लिए हुए था। अब मैंने सोच लिया था कि मुझे आगे क्या करना है, और घर आने के बाद मैंने अपनी पहली बीवी से इस बारे में मशवरा किया, और जब उससे सारी बात बताई तो वो चुप की चुप रह गई थी। वो मेरी चारों बीवियों में सबसे ज्यादा समझदार थी। उससे बात करके मुझे हमेशा तसल्ली हो जाती थी, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल दुरुस्त मशवरा देती थी। उसने मुझे कहा कि आपका ये फैसला गलत नहीं है, आप उस औरत के साथ शादी कर लें, ऐसे आपको अल्लाह की रजा भी मिल जाएगी, और हो सकता है कि अल्लाह आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दे। और फिर कुछ दिनों के बाद मैं दोबारा आयशा के पास गया, और जब उसने निकाह की ख्वाहिश का इजहार किया तो वो कितनी देर गुमसुम सी रही। फिर कहने लगी, मुझे इस बात पर एतराज तो नहीं है, मगर शायद आप मेरे बच्चों को वो मोहब्बत ना दे सके जो उनका हक है। मैंने उसे यकीन दिलाया कि ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हारे बच्चों को बहुत मोहब्बत दूंगा और उनका ख्याल भी रखूंगा। वैसे भी यतीम के सर पर हाथ रखने से तो अल्लाह भी खुश होता है। हो सकता है कि इस तरह मुझे भी अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो जाए, और जो मैंने तुम्हारा दिल तोड़कर गुनाह किया है, हो सकता है कि उसका भी कुफारा अदा हो जाए। वो मेरी बात सुनकर उठी। उसके चेहरे पर खिलते हुए रंग ये जाहिर कर रहे थे कि उसे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली है। और फिर जल्द ही मैंने उसके साथ निकाह कर लिया और उसे लेकर अपने घर आ गया। मेरी बाकी तीनों बीवियां इस बात से बेखबर थी। उन्हें जब मेरी 5वीं शादी के बारे में पता चला तो वह हक्का बक्का रह गई और कहने लगी कि अगर अल्लाह ने आपको औलाद देनी होती तो हमें से ही दे देता, आपको 5वीं शादी करने की क्या जरूरत थी, वो भी उस औरत के साथ जिसके पहले भी बच्चे हैं। ये सुनकर मैंने उन्हें कहा कि मैंने जो कुछ भी किया सोच समझ कर किया है और अपने दिल की खुशी के लिए किया है। तुम फिक्र मत करो, उसके यहाँ आ जाने पर तुम लोगों की हक तलफी नहीं होगी, बल्कि तुम सबको तुम्हारा जायज मकाम जरूर मिलेगा। आयशा को यहाँ पर आए हुए थोड़ा ही अरसा गुजरा था जब अल्लाह पाक ने मुझे औलाद की खुशी दिखाना शुरू कर दी, और मैं हैरान परेशान रह गया कि ये कैसा मौजज़ा हुआ है। इसका मतलब यही था कि मैं अब तक इतनी बड़ी खुशी से इसलिए महरूम था क्योंकि मेरे साथ आयशा की यहाँ भी सफर कर रही थी कि उसका दिल तोड़ने की सजा थी, और अब जब उसकी यहाँ खुशी में तब्दील हुई तो अल्लाह पाक ने भी मुझे खुशी अता कर दी और मेरी मुश्किलात परेशानियां खत्म हो गई। मेरा कारोबार भी दिन रात दुगनी चुगनी तरक्की करने लगा और अब तो मैं पैसे में खेलने लगा था। अब अल्लाह पाक ने मेरी चारों बीवियों को औलाद अता कर दी थी और मैं खुशियों में जैसे झूल रहा था। हमें कभी भी किसी का इतना दिल नहीं दुखाना चाहिए कि इसके दिल से निकलने वाली आह हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा बन जाए और दुनिया के साथ साथ हमारी आखिरत भी खराब हो जाए। मैंने आयशा के दिल दुखाया था, इसलिए अल्लाह ताला ने मुझे औलाद की नेमत से महरूम रखा था, और जैसे ही उसे अपनाया अल्लाह ताला ने मुझे साहिब औलाद कर दिया था।